Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2 is still in progress. In this chapter, today is our lecture number 7, in which we study the application of the Bohr's atomic model. Now, one of the application of Bohr's atomic model is the derivation for the calculation of a radius of an orbit in the hydrogen atom. इसके अलावा भी डेरिवेशंस हैं, लेकिन आज हम ये बोर्स एटॉमिक मॉडल की मदद से ये स्टडी करेंगे कि कैसे हम हाइड्रोजन एटम और ऐसे आयन जिसमें हाइड्रोजन की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है उनके किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं और उनके रेडियस के कैलकुलेशन के लिए जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है, वो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं. Now, learning objectives of today's lecture are to enable our students to derive a relationship for the calculation of radius of an orbit in the hydrogen atom, as well as those ions which are monoelectronic, that is, which contain 1 electron like hydrogen atom. And this will also enable our students to solve the numerical problems which are related to the radius of an orbit in the hydrogen atom and ions containing 1 electron only. Now let's derive the relationship for the calculation of radius of an orbit in the hydrogen atom. We will do this derivation from the Bohr's atomic model. Bohr applied his theory to derive the expression for the calculation of the radius of nth orbit in a hydrogen atom. Nth orbit means any orbit number n are the ions like helium ion He plus 1, lithium plus 2 ion, beryllium plus 3 ion, etc. Now suppose we have a hydrogen atom in which electron of charge E is revolving around the nucleus having the charge Ze. Ze is charge on the nucleus. Z stands for the number of proton and E is the charge on the proton. Since this charge is plus E, so overall charge on the nucleus is plus Ze. The mass of electron which is revolving around the nucleus is m. R is the radius of orbit in which electron is moving. The velocity of electron is v and the charge on the electron is e. कहने का मतलब यह है कि बोहर ने अपनी थ्योरी की मदद से, अपने एटॉमिक मॉडल की मदद से हाइड्रोजन एटम और ऐसे आयन जिसमें हाइड्रोजन की तरह 1 इलेक्ट्रॉन हो, उनमें किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव की. अब हम देखते हैं कि डेरिवेशन हम कैसे समझ सकते हैं. तो इस मकसद के लिए फर्ज कीजिए कि ये एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस Ze है. Z number of proton and E charge on the proton. Electron is revolving around this nucleus at the distance r. Yani r is the radius of this orbit. M is the mass of electron. Charge on electron is E and its velocity is v. Now, as electron is revolving around the nucleus in the circular path, therefore it possesses a centripetal force which is provided by electrostatic force of attraction between the positive nucleus and the negative electron. इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको सर्कुलर पाथ में रखने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स आती है इस पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से.
और इस फोर्स को हम कोलम्स लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू द कोलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of charges of the two particle and is inversely proportional to the square of distance between them. So the force of attraction, which is the centripetal force, directly proportional to charge on the nucleus Ze multiplied by the charge on electron E, and is inversely proportional to square of distance, that is r between them. R is the radius of the orbit. तो अगर हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो ये सेंटीपिटल फोर्स ये आ जाएगी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर के, या सेंटीपिटल फोर्स अब किसके इक्वल होगी, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लेते हैं तो ये आ गया जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। इस रिलेशनशिप में E एक कांस्टेंट है जिसको हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं, और वैक्यूम के लिए इस परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू जो है वो है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और मैंने अभी आपको बताया कि इट आल्सो पोजेसेस द सेंटीपिटल फोर्स विच कीप इट इन द सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास एक इक्वल बट ऑपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है या रिएक्शन फोर्स भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो पोजेस करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। इसका मतलब एक ये हुआ कि एक ऑपोजिट फोर्स भी इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में कंटिन्यूसली मूव करता है, और वो ना तो न्यूक्लियस के अंदर फॉल करता है और ना उससे अवे होता है। And this centrifugal force या reaction force is given as mv square over r, where m is the mass of electron, v is velocity and r is the radius of the orbit। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में या ऑर्बिट में कंटिन्यूसली मूव करता है, therefore the two forces balance each other, that is centripetal force is equal to centrifugal force. So centripetal force Z square over 4 pi epsilon naught R square is equal to mv square over R। या फिर ये mv square जो है ये अब किसके बराबर हो गया, ये R जो है ये कैंसिल हुआ, तो Z square over 4 pi epsilon naught R it is equal to mv square, और अगर आप m को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो v स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, इट इज इक्वल टू z स्क्वायर ओवर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर एम, और r अगर यहां से आप जो है वो डिराइव करें तो r किसके इक्वल हो गया, r इज इक्वल टू z स्क्वायर ओवर 4 पाई आर एम वी स्क्वायर। ये रिलेशनशिप आपको क्या बताती है, ये रिलेशनशिप आपको ये बताती है कि किसी भी ऑर्बिट का रेडियस उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग फास्टर इन द ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर रेडियस, दैट इज व्हिच इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो अगर सपोज कीजिए कि एक एटम लाइक हाइड्रोजन के पास बहुत से पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जो है वो ट्रांजिट करता है, शिफ्ट करता है, तो जैसे जैसे वो हायर ऑर्बिट में की तरफ मूव करेगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर।
इसे आप इस एनिमेशन से देखिए कि अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट ऑर्बिट में था तो स्मॉलर वेलोसिटी ये एनर्जी गेन कर रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में मूव कर रहा है ये, और हायर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। और हायर ऑर्बिट में जैसे जैसे ये मूव कर रहा है, इसकी अब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो इसको दोबारा आप देखिएगा, फर्स्ट ऑर्बिट, अब सेकंड ऑर्बिट में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, एनर्जी इंक्रीज हुई। थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी फर्दर इंक्रीज हुई, वेलोसिटी और कम हो गई। फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी फर्दर डिक्रीज कर गई। अब ये फिफ्थ ऑर्बिट में एनर्जी और ज्यादा हो गई और वेलोसिटी ज्यादा कम, और लीस्ट वेलोसिटी इस केस में ये सिक्स ऑर्बिट में, यानी जैसे रेडियस इंक्रीज करेगा देयर विल बी डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब ये प्रीवियस इक्वेशन में वेलोसिटी फैक्टर्स को हमने खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए ये बोर्स एटॉमिक मॉडल का एक पास्टुलेट कंसीडर कीजिए कि एंगुलर मोमेंटम इज अ सिंपल मल्टीपल ऑफ द फैक्टर h ओवर 2 पाई। तो v किसके इक्वल हुआ? v इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई एम आर के। और अगर आप इसका स्केयर ले लें तो v स्केयर किसके इक्वल हो गया? v स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर। अब इससे पहले आप देख चुके हैं कि वी स्केयर जो है ये किसके इक्वल है? इक्वेशन नंबर 3 के मुताबिक इट इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर और 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर। और इक्वेशन 5 के मुताबिक वी स्केयर किसके बराबर है? इक्वेशन 3 के मुताबिक वी स्केयर जो है इट इज इक्वल टू जेड स्केयर ओवर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर एम। और इक्वेशन 5 के मुताबिक वी स्केयर किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर। ये दोनों वी स्केयर हैं, तो इसलिए आप इनको कंपेयर कीजिए। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा? ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, ये पाई स्केयर इस पाई को कैंसिल कर देगा, ये एम स्केयर इस एम को कैंसिल कर देगा, ये आर स्केयर जो है वो यहाँ पे जो है वो इसको आर को जो है वो कैंसिल कर देगा, जिसके अब नतीजा इसका क्या निकलेगा? अब आपके पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे आ गई? एन स्केयर एच स्केयर ओवर पाई एम आर, ये स्केयर इस तरफ से जो पाई एम आर से कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू जेड ई स्केयर ओवर इप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आर की वैल्यू आप मालूम कीजिए, आर विल बी इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर इप्सिलॉन नॉट ओवर जेड ई स्केयर पाई एम। हाइड्रोजन के लिए जेड जेड इज फॉर एटॉमिक नंबर, ये 1 के इक्वल है, तो इसलिए रेडियस किसके इक्वल हो गया? इट इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर इप्सिलॉन नॉट ओवर ई स्केयर पाई एम के। ये इक्वेशन 6 हो गई। इक्वेशन 6 के मुताबिक रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट is directly proportional to square of the number of orbit, यानी there will be increase in the radius of orbit with increase in the number of orbit। यानी मतलब ये जो है कि ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस सबसे कम होगा, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस उससे कम ज्यादा होगा, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस उससे ज्यादा, एंड सो ऑन। इक्वेशन 6 में ये एन स्केयर के अलावा बाकी तमाम कांस्टेंट हैं, एच स्केयर इप्सिलॉन नॉट ओवर ई स्केयर पाई एम, इसको हम एक ही कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं जिसको हम बोहर्स रेडियस कहते हैं। और बोहर्स रेडियस को ए नॉट से जाहिर किया जाता है, इसकी वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के। सो बोहर्स रेडियस इज इक्वल टू 0.529 into 10⁻⁻10 meter. Now Bohr's radius is a physical constant. It is equal to the most probable distance between the nucleus and electron in the hydrogen atom in its ground state.
and it's named after the Niels Bohr due to its role in the model for the atom which he derived by modifying the Bohr's Rutherford atomic model. यानी ये जो बोहर्स रेडियस है ये क्या चीज है कि हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में यानी फर्स्ट ऑर्बिट में होता है तो उसके न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम और 0.529 into 10 to the power minus 10 एंगमीटर। ये वैल्यू हमेशा फिक्स होती है जिसकी वजह से हम इसको बोहर्स रेडियस कहते हैं। तो अगर आप इन तमाम कांस्टेंट को ए नॉट से जो है वो रिप्लेस करते हैं तो रेडियस हुआ n स्क्वायर इंटू ए नॉट और रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 0.529। इसको इक्वेशन आप 8 कर लीजिए। तो अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद है तो n की वैल्यू 1 होगी। यानी आपने किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है हाइड्रोजन एटम में तो आप उसमें n की जगह ये वैल्यू ऑर्बिट की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 तो r1 रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर इनटू 0.529 इट विल बी इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम यानी इट विल बी इक्वल टू द बोर्स रेडियस। सेकंड ऑर्बिट जिसके लिए n की वैल्यू 2 है रेडियस कितना हुआ रेडियस r2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यहाँ पे 2 वैल्यू है n की इंटू 0.529 इट इज इक्वल टू 2.11 एंगस्ट्रम। और जो थर्ड ऑर्बिट के लिए r3 is equal to 3 square into 0.529 it is equal to 4.75 एंगस्ट्रम। ये तमाम कैलकुलेशन ये जो है वो क्या शो कर रही है। अब आप देखिए कि r1 स्मॉलर r2 उससे बहुत ज्यादा है r3 जो है वो उससे भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एडजेसेंट ऑर्बिट के दरमियान जो गैप है या जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट ऑर्बिट से हर ऑर्बिट की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि r1 और r2 के दरमियान जो डिफरेंस है it is less as compared to the difference between r3 and r2 and it will be even less as compared to difference between the r4 and r3। मतलब क्या हुआ कि सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस के दरमियान जो डिफरेंस है it is less as compared to difference between the radius of the third and second orbit and it will be even less as compared to the radius of difference between the radius of fourth and third ऑर्बिट। अब इसको पहले जरा देख लीजिए आप एक फिगर से फिर मैं दोबारा ये दिखाऊंगा कि ये फर्स्ट ऑर्बिट ये सेकंड ऑर्बिट। अब यह देखें कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के रेडियस के दरमियान ये डिस्टेंस हुआ। नाउ थर्ड ऑर्बिट इज मोर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस यानी सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है। So there will be greater difference between the radius of the third and second orbit. And fourth orbit is even away from the nucleus. इसलिए फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट के रेडियस के दरमियान जो डिफरेंस है वो इवन इससे ज्यादा हो जाएगा। So there will be increase in the distance gap between the adjacent orbits in going from the lower orbit to the higher orbits। तो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया उसकी रीजन क्या है। रीजन इज द रेडियस नॉट सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ n। तो अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम के अलावा दूसरे मोनो इलेक्ट्रॉनिक आयन है आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन लाइक हीलियम प्लस वन आयन लिथियम प्लस टू आयन बेरिलियम प्लस टू आयन तो उनके किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम करने के लिए आपको इस रिलेशनशिप में इक्वेशन 7 या इक्वेशन 8 में आपको z की वैल्यू यानी एटॉमिक नंबर जो है वो पुट करना पड़ेगा। so r will be equal to n square over z into a naught or it will be n square over z into 0.529 एंगस्ट्रम।
तो ये बच्चों डेरिवेशन जो है वो मुकम्मल हुई। ये आपने डेरिवेशन जो है वो अच्छी तरह याद रखनी है ये। और इसमें हाइड्रोजन एटम या किसी भी हाइड्रोजन लाइक आयन का रेडियस आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। और इससे रिलेटेड कोई कुछ मजीद क्वेश्चन भी हैं, वो अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल question is that why the distance gap between the adjacent orbit goes on increasing from low to higher orbit। ये अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि r is directly proportional to square of n, therefore there will be large increase in radius in going from the lower orbit to higher orbit। इसलिए distance gap भी adjacent orbit के दरमियान जो है वो increase करता है in going from the lower orbit to the higher orbit। तो इसको आपने लिखना कैसे है कि according to both atomic models, the radius of an orbit in hydrogen atom is given as r is equal to n square over z into h square epsilon naught over e square by m। या ये इक्वेशन क्या बता रही है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ n, दैट इज द रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट, देयरफॉर देयर इज लार्ज इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, hence the distance gap between the adjacent orbit goes on increasing from lower to higher orbits। Next question, both the hydrogen atom and helium ion are monoelectronic system, यानी इन दोनों स्पीशीज में, हाइड्रोजन एटम में और हीलियम आयन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बट द रेडियस ऑफ हीलियम आयन इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब इसकी रीजन क्या है? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि दोनों जो स्पीशीज हैं इनके फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू कितनी है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। रिलेशनशिप अप्लाई कीजिए, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर ओवर c इंटू ए नॉट आर, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर ओवर c इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। वैल्यू पुट करें, इट विल बी इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम। अब आप हीलियम आयन के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मालूम करें। तो हीलियम आयन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही मूव करेगा, यानी n की वैल्यू 1 है, लेकिन इसके लिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू 2 है। रिलेशनशिप इज n स्क्वायर ओवर c इंटू ए नॉट। वैल्यू पुट कीजिए, n की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर ओवर z इज 2 इंटू 0.529, इट इज इक्वल टू 0.2645 एंगस्ट्रम। यानी ये आप दोनों वैल्यूज कंपेयर कीजिए कि the value of radius of the first orbit of helium ion is much smaller as compared to that of the hydrogen atom। ये almost इसके हाफ है। तो इसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि r is also inversely proportional to c, यानी जो रेडियस है वो एटॉमिक नंबर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करने से क्या होगा कि देयर विल बी इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज और द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है वो न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा। अब हीलियम में क्या है? हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज हीलियम में ज्यादा है। हीलियम का न्यूक्लियस इस अपने फर्स्ट ऑर्बिट को अपनी तरफ ज्यादा क्लोजली जो है वो पुल करेगा, जिसकी वजह से जो हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी इट विल बिकम 0.2645 एंगस्ट्रम। Next question, how will you show that radius of the third orbit is 9 times greater as compared to the radius of the first orbit? तो इस यानी इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप ये शो कीजिए न्यूमेरिकली कि हाइड्रोजन एटम में थर्ड ऑर्बिट का रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की निस्बत 9 टाइम ग्रेटर है। तो आप इन दोनों ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर लीजिए। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस r1, ये रिलेशनशिप वैल्यूज पुट कीजिए, इट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम। अब थर्ड ऑर्बिट का रेडियस n की वैल्यू थी, z की वैल्यू उतनी रहेगी, तो मैंने इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, इट इज इक्वल टू 0.529
9 into 0.529 एंगस्ट्रम। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कीजिए। R3 over R1 is equal to 9 into 0.529 divided by 0.529, it is equal to 9, यानी radius of the third orbit is equal to 9 times as compared to the radius of the first orbit। तो उसकी भी रीजन ये है कि radius is directly proportional to square of the number of orbit। तो इस तरह आपसे किसी भी दो ऑर्बिट के रेडियस के दरमियान जो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए जो है वो कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो आपको हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम की तरह के जो आयंस हैं, हीलियम आयन हो गया, लिथियम आयन हो गया या बेरिलियम आयन होगा, तो उसके किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। वेरी सिंपल। तो अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में मौजूद है तो n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये 1 यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है, तो z की वैल्यू जो है वो 1 है। रिलेशनशिप इज n स्क्वायर ओवर z इंटू 0.529, तो ये n की वैल्यू जो है ये 4 का स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे ये इसको अपनी कॉपी पे कैलकुलेशन को करेक्ट कर लीजिएगा कि फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस जो है ये n स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर ओवर 1 इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। तो इसको आप जो है वो करेक्टली खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपने इसी रिलेशनशिप के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है, फिर देख लीजिएगा कि n इज इक्वल टू 4 नॉट 1, z इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 4 स्क्वायर ओवर 1 इंटू 0.529। Now, how much distance is traveled by an electron when it shifts from the eighth orbit to third orbit in the hydrogen atom? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एथ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में ड्रॉप करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इन दोनों ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर लें। एथ ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर लें, ये क्या हो जाएगा R8। तो n is equal to 8, z is equal to 1, R8 will be equal to 8 square over 1 into 0.529, 33.856 एंगस्ट्रम। इन द सेम वे अब आप थर्ड ऑर्बिट का रेडियस जो है वो कैलकुलेट कर लें। इट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर ओवर 1 into 0.529, इट इज इक्वल टू 4.761 एंगस्ट्रम। अब कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल हुआ, तो इसके लिए जो है ये आप एथ ऑर्बिट के रेडियस में से थर्ड ऑर्बिट का रेडियस माइनस करते हैं, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू R8 माइनस R3, इट विल बी इक्वल टू 29.095 एंगस्ट्रम। तो इस तरह आपको किसी भी दो ऑर्बिट के दरमियान जो डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये ए बहुत रेडियस है, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। तो इसमें जो हमने अभी स्टडी किया है कि ए नॉट जो है इट इज इक्वल टू n स्क्वायर s स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट ओवर पाई m e स्क्वायर। अब आप इन ये तमाम जो वैल्यूज हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू आपने याद रखनी है। इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square per joule per meter. Pi is 3.142. Charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Value of H is 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second. Mass of electron 9.11 into 10 to the power minus 31 kg। और हाइड्रोजन के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 होगी। तो ये तमाम वैल्यूज अगर आप इधर पुट कर लें तो a की वैल्यू जो है ये 5.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर या 0.529 एंगस्ट्रम के इक्वल आ गए। तो स्टूडेंट ये तमाम जो है ये डेरिवेशन आप अपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। जो अभी मैंने क्वेश्चन इस लेक्चर के दौरान आपको समझाए यही मैं आपको रिव्यू क्वेश्चन के तौर पे दे रहा हूँ। एक दफ़ा स्टडी कीजिए इसको, फिर जो है वो सॉल्व कीजिएगा और फिर इन रिव्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स।